Hello, dear students. Good morning. I hope you all are fine. So, let us continue with our lesson, that is pollution. And we were in flow with the pollution of air. And हमने देखा कि how important air is for all the living beings. All okay. Then we have seen कि pollution कैसे होता है air का, and we have seen so many of the sources which brings out the air pollution. So let us continue with the sources which causes air pollution. So there can be some biological pollutants. So here, as the name itself suggesting, the name is suggesting, biological pollutants means what? ये ऐसे biological things है, like we can say these all are the living things जो क्या करते हैं, पॉल्यूशन कॉज करते हैं, जैसे कि पोलन ग्रेन या फिर माइट है, हेयर फ्रॉम द पेट्स, फंगाई, पैरासाइट्स, कुछ बैक्टीरिया है. तो ये सारे क्या है, दिस ऑल आर द लिविंग थिंग्स और दे ऑल कम फ्रॉम द लिविंग थिंग, इसीलिए उसको बोलेंगे बायोलॉजिकल पल्यूटेंट्स. ओके, और इन बायोलॉजिकल पल्यूटेंट से हमें क्या हो सकता है, इट मे लीड टू एलर्जीज. आपने देखा होगा पोलन ग्रेन, अगर समवन मतलब कुछ जो लोग होते हैं, दे हैव द एलर्जी ऑफ पोलन्स, राइट? सो दे मे डेवलप एलर्जिक सिम्टम्स और एलर्जिक डिसीजेज, और देर कैन बी आस्थमा, hay fever. So these all are the symptoms, okay, or the result which are caused by the biological pollutants. Then next, that is the chemical, which is formaldehyde. See, formaldehyde, it is actually at the in the gaseous form. It comes mainly from carpets, the particle boards, insulation foam. यहाँ से mainly the formaldehyde is released. और ये जो फॉर्मल्डिहाइड है, इट कॉजेज इरीटेशन टू आवर आईज एंड नोज एंड इट मे कॉज एलर्जीज इन सम पीपल. यू सी, जो भी एलर्जिक, लाइक व्हाट वी कैन से, जो भी पल्यूटेंट्स है, एयर के पल्यूटेंट्स, एयर हम क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं. सो ऑफ कोर्स एयर के जो भी पल्यूटेंट्स है वो हमें किस टाइप के सिम्टम्स दे विल शो द सिम्टम्स रिलेटेड टू नोज, रिलेटेड टू आईज एंड रिलेटेड टू द रेस्पिरेटरी सिस्टम. ओके, तो ये बहुत कॉमन है हर एक पल्यूटेंट में कि व्हाट सिम्टम्स दे विल शो. सो ऑफ कोर्स दे विल what we can say, so of course they will affect our nose, our respiratory tract and also the eyes. So an allergy is common in all the pollutants. Then there is asbestos. Asbestos क्या है, एक टाइप का एलिमेंट है. जैसे यू नो द एलिमेंट ऑफ आयरन इज देयर, कॉपर इज देयर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तो ये सारे एलिमेंट्स है. सो asbestos is an element which is mainly a concern because it causes cancer. So it is called cancerous agent. Okay, it causes cancer in human beings and it is of major concern and we should take care of it. Then there is radon. Radon जो है वो एक्चुअली रेडियो एक्टिव मटीरियल है, मतलब इट इज़ वेरी हार्मफुल. उसमें से कुछ रेज निकलते हैं that are very harmful for us. So radon is a gas, it is in the gaseous state that is emitted naturally by the soil. Soil से radon is emitted always. तो अभी जो मॉडर्न हाउसेस है जिसमें वी डोंट हैव सफिशेंट अमाउंट ऑफ वेंटिलेशन, सब रूम्स पैक्ड होते हैं, द हाउसेज आर सो पैक्ड, देयर इज हार्डली एनी वेंटिलेशन. तो क्या होता है, एंड वी ऑल्सो यूज द सॉइल, द सैंड एंड ऑल इन द बिल्डिंग प्रोसेस, इन द कंस्ट्रक्शन प्रोसेस. तो क्या होता है, ये जो रेडॉन उसमें प्रेजेंट है इन द सॉइल, दैट इट इज कंटिन्यूसली एमिटेड, राइट? And that will cause harm to the dwellers and if it will cause harm to the people who are living in that house. Okay, then there is a concept called acid rain. देखो, acid rain क्या है, it is just the rain which is acidic in nature. What does it mean? So क्या होता है कि you see, I'll show you the diagram here. What is there in the acid rain? जो भी कुछ we have seen, जो भी pollutants है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये जो सारे pollutants होते हैं, what we can say in general, oxides of sulfur, nitrogen and carbon. The oxides of sulfur, nitrogen and carbon are, these all are responsible for acid rain. कैसे, देखो,
ये जो ऑक्साइड्स होते हैं विच आर रिलीज ऑफ कोर्स बाय वेरियस सोर्सेज फ्रॉम द इंडस्ट्रीज, फ्रॉम द बर्निंग ऑफ समथिंग, एंड ये सब what we have seen from various sources, this all are emitted and they are released into the atmosphere. तो वो एटमॉस्फेयर में जाके when the rain falls, जब रेन हो रही है तो these oxides will react with the rain water. These oxides will react with the rain water और react होके they will form acid. Okay, they will form acid. और वो जो एसिड है दैट ऑफ कोर्स इट हैज़ फॉर्म एसिड विद द वाटर. तो वाटर, कुछ वाटर, जितना भी रेन आ रहा है उसमें से कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स विल रिएक्ट विद दिस ऑक्साइड्स एंड दे विल फॉर्म एसिड. yes, and that acid is not that it is not very much acidic, it is very weak acid. तो उसका इतना हार्म नहीं है इवन दो इट फॉल्स ऑन अस, बट इट इज़ नो हार्म टू अस. लेकिन क्या होता है, ओके नाउ लेट मी क्लियर व्हाट इज एसिड रेन. सो ये जो एसिड उसमें प्रेजेंट है रेन में, द रेन बिकम्स अ लिटिल बिट एसिडिक. ओके, वैसे न्यूट्रल होना चाहिए रेन का पानी, लेकिन इट बिकम्स एसिडिक बिकॉज ऑफ दिस रिएक्शन एंड दैट रेन इज कॉल्ड एसिड रेन. तो वैसे जैसे मैंने बोला दिस एसिड इज सो वीक सो इट विल नॉट हार्म एट सच, बट अगर कंटिन्यूसली वही रेन आती है, acid rain is only falling every year and the whole rainy season, तो क्या होगा, of course it will be more and more acid. so वो acid it will affect at some point, right? एक बार अगर acid rain हुई तो it won't affect, but if it is happening all the time तो it will have of course some effect, and it affects on living things and non-living things also. so it affects on living things. that means forest में अगर if the acid rain is there, so it may also damage the forest, it may damage the we cannot say damage, but it will affect on the forest, it will affect on the ecosystem which is living over there. It will also cause some effects on the non living thing, जैसे कि कुछ buildings है या फिर कोई कंस्ट्रक्शन डैम्स एंड ऑल, तो उसमें भी दिस विल अफेक्ट बिकॉज एसिड है. तो वो कंस्ट्रक्शन में जो मटेरियल हमने यूज़ किया है आयरन वगैरह, इट विल रिएक्ट विद दैट. एंड इन द फॉरेस्ट हाउ विल इट अफेक्ट, ऑफ कोर्स इट विल फॉल ऑन द सॉइल, और सॉइल का जो pH है इट विल बी मोर एसिडिक, एंड यू हैव लर्न द सॉइल शुड नॉट बी मोर एसिडिक नॉर मोर बेसिक फॉर द क्रॉप्स टू ग्रो. तो the thing is it will also mix with the river water and all, it will mix everywhere, so it will ultimately slowly it will cause damage to the living and non-living things. So acid rain, and that is caused because of air pollution only. In Canada most of the forest that is being, we can see the effect on that forest due to acid rain. So that is an example. Okay, then next is chlorofluorocarbon. What is chlorofluorocarbon? It is a compound, एक substance है वो, the short form of that is CFC. Okay, तो ये जो chlorofluorocarbon है ये this is also a kind of pollutant, or which is not used, it was used in the refrigerator, in ACs and in the aerosol sprays. पहले वो यूज़ होता था, लेकिन as we came to know the harmful effect of CFC तो वो बैन हो गया यूज़ करना, now it is not used. बट पहले जितना भी यूज़ हुआ उससे काफ़ी पोल्यूशन हो चुका है ऑलरेडी. तो what we can tell about CFC is this CFC it damages the ozone layer. आपको पता है हमारे एटमॉस्फेयर में ओजोन लेयर है, and it has met there is a hole which is formed in the ozone layer mainly because of the CFC. CFC जो है वो it reacts with ozone layer और उसका डिप्लेशन करता है. सो इट डैमेजेस द ओजोन लेयर इन द एटमॉस्फेयर, एंड यू नो हाउ इम्पोर्टेंट ओजोन लेयर इज. ओजोन लेयर इट फिल्टर्स द सनलाइट. यस, वी हैव सीन यूवी रेज जो है वो फिल्टर हो जाते हैं, एंड इट विल नॉट अलाउ द यूवी रेज टू कम ऑन द अर्थ बिकॉज दीज आर वेरी हार्मफुल फॉर अस, फॉर आवर स्किन. ओके, so this is how CFC is the kind of pollutant. It is very what we can say, it is very harmful for us ultimately, not directly but indirectly. तो ऑटोमोबाइल्स दे बर्न डीजल एंड पेट्रोल. जो है ऑटोमोबाइल्स में जो हम डीजल पेट्रोल यूज़ करते हैं उनमें से भी कुछ छोटे छोटे पार्ट अलॉन्ग विद द गैसेज दे ऑल्सो रिलीज सम स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स, जिसको क्या बोलेंगे हम लोग, पार्टिकुलर्स, राइट. पार्टिकल्स हमने देखा था, वी हैव सीन इट अर्लियर. तो दिस पार्टिकल्स दे विल बी एमिटेड and they may enter into our nose as we inhale, they may enter into our eyes and
दे मे कॉज डैमेज टू दिस पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, राइट। और आपको पता होगा और पेट्रोल जो होता है, पेट्रोल में लिड इज़ यूज्ड इन द पेट्रोल, बट अभी वो लिड का यूज़ काफ़ी कम हो गया है बिकॉज दैट लिड इज़ ऑल्सो इट इज़ एलिमिनेटेड लाइक दैट ओनली इन द फॉर्म ऑफ पर्टिकुलेट, और वो क्या करेगी, इट विल हार्म अस, ओके, इट इज़ अ हार्मफुल एलिमेंट। वैसे पावर प्लांट्स है या फिर माइनिंग की जो एक्टिविटी है, स्टील मेकिंग, माइनिंग, दैट ऑल्सो रिलीजेज सम पार्टिकल्स, एंड सेइंग पार्टिकल्स, सॉलिड पार्टिकल्स रिलीज करते हैं। सो दीज आर ऑल्सो दे मिक्स विद बिकॉज दे आर वेरी लाइट इन वेट, सो दे गेट मिक्सड, like they will fly, they will be random in the air, they will be present in the air, and they will cause air pollution because they are not the part of air na, they are the foreign particles for air, so they will also cause air pollution. Okay, then as we are talking about air pollution and we had seen about the acid rain, you can see what is this. Yes, it is Taj Mahal. Do you see two shades of it? एक पार्ट में पूरा वाइट है जो शाहजहां ने बनाया था, इट इज़ लाइक दैट, बट इन द सेकेंड पार्ट इफ़ यू सी वो थोड़ा सा येलोइश हो गया है. यस, सो दैट इज़ द इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन. देखो, एयर पोल्यूशन नॉट ओनली अफेक्ट्स ऑन लिविंग थिंग बट इट ऑल्सो अफेक्ट ऑन द नॉन लिविंग थिंग लाइक द मॉन्यूमेंट्स एंड ऑन द स्टैचूज, उस पर भी वो अफेक्ट करता है. तो ताजमहल का जो कलर है वो इट इज़ लाइक डैमेज हो गया है कलर. Okay, so this is very serious issue and this is partly because of acid rain also and because of air pollution. So that is all because of air pollution ultimately. So you see that much effect, इतना adverse effect air pollution का हो सकता है. Then we have greenhouse effect. So you can see this diagram. Greenhouse effect में क्या होता है कि देखो, हमारा जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है उसमें कुछ गैसेस है, जैसे कि कुछ गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, देन वी हैव CFC इज ऑल्सो ओके, CFC वी विल नॉट से, बट कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये जो गैसेस है वो हमारे एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं. वो क्या करते हैं, हीट से जो सन से जो हीट आती है ड्यूरिंग डे टाइम वो उसको पकड़ के रखते हैं. दे ट्रैप द हीट, सो दैट क्या होगा, रात को जब सन नहीं है तो वो जो हीट ऑलरेडी ट्रैप्ड है वो रात को हमें काम में आती है, दैट इज़ नीडेड. अगर वो हीट ट्रैप नहीं होती सन से तो रात को टेम्परेचर एकदम डाउन हो जाता हर एवरी नाइट एंड एवरी सीजन. सो वी डोंट वांट दैट. इसीलिए द हीट ऑफ सन शुड बी ट्रैप्ड. ओके, इट शुड गेट ट्रैप्ड. तो दैट इज ट्रैप्ड बाय दिस गैसेस एंड दीज गैसेस आर कॉल्ड ग्रीन हाउस गैसेस. CH4 that is methane, कार्बन डाइऑक्साइड, these are called as the green house gases क्योंकि वो क्या करते हैं, सन की हीट को ट्रैप करके रखते हैं ड्यूरिंग डे टाइम एंड नाइट को वो हीट हमें काम में आती है. लाइक फिर अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो पूरा टेम्परेचर उसका कम नहीं होगा, इट इज़ बैलेंस्ड. लेकिन क्या हो रहा है, ड्यू टू पोल्यूशन और ड्यू टू वेरियस सोर्सेज, ड्यू टू एयर पोल्यूशन वी कैन से दिस मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, इसका जो प्रोपोर्शन है वो जितना होना चाहिए एटमॉस्फेयर में उससे कहीं ज़्यादा बढ़ गया है. तो क्या हो रहा है, उसमें CFC भी ऐड हो गया है. उससे क्या हो रहा है, ये सारे गैसेस क्या कर रहे हैं, हीट को ट्रैप कर रहे हैं एज दे डू, इट इज़ देयर वर्क. लेकिन 100 मॉलिक्यूल्स जो होने चाहिए, फॉर एग्जांपल एटमॉस्फेयर में 100 मॉलिक्यूल्स होने चाहिए वो 200 हो गए हैं, इट हैज़ बिकम 150 और 200. तो क्या हुआ, ज़्यादा हीट ट्रैप हो रही है विच इज़ नॉट नीडेड. इतनी हीट ज़रूरी नहीं है, तो कुछ ज़्यादा अमाउंट में हीट ट्रैप हो रही है और इसीलिए क्या हो रहा है, हमारा जो ओवरऑल टेम्परेचर है वो धीरे 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 बढ़ रहा है. एंड एवरी ईयर ऑलमोस्ट एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, ओके, दैट इज इंक्रीजिंग बाय 1 डिग्री सेल्सियस एंड वेरी नियर फ्यूचर इट मे इंक्रीज अप टू 2 डिग्री सेल्सियस एंड दैट इज़ नॉट गुड. ओके, ये समर में अगर 40 डिग्री था तो नेक्स्ट समर में 41 होगा, फिर 42, ये बढ़ता जाएगा एंड इट विल बी लाइक right. So this is not done, so we should take care of all these things and air pollution should be prevented by various ways. Okay, and yes, global warming, so that's what ये मैंने जो बोला, तो ओवरऑल जो हीट है वो बढ़ रही है, ओवरऑल जो टेम्परेचर है अर्थ का वो बढ़ रहा है, दैट इज ओनली कॉल्ड एज ग्लोबल वार्मिंग. द ग्लोब इज गेटिंग वार्मर एंड वार्मर, so that is global warming. Okay,
and that will disturb the rainfall pattern. Agriculture will help, it will affect on forest, plants, animals, and on everything it will affect. So we must take care of these things and we should try to minimize the air pollution. So what can we do to minimize air pollution? I'll tell you some examples, बाकी you have to think कि मतलब ओके दिल्ली का अगर हम बात करें, दिल्ली में बहुत सारा पोल्यूशन था, तो उन्होंने क्या किया, पेट्रोल डीजल का यूज़ कम किया एंड क्या सीएनजी, राइट. नाउ ऑल्सो यू सी द गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग टू यूज़ सीएनजी, राइट. एंड इंस्टीड ऑफ जो फ्यूल्स है पेट्रोल डीजल या फिर जो कोल एंड ऑल, उसकी जगह पे वी कैन यूज़ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, राइट. वी कैन यूज़ द अल्टरनेटिव फ्यूल्स जो कि क्लीन है, क्लीन विच आर क्लीन सोर्सेज ऑफ एनर्जी. सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी है, हाइड्रो पावर एंड दैट. सो वी कैन गो फॉर दोज क्लीन एनर्जी, राइट. जिसमें से क्या होगा, कम से कम स्मोक, कम से कम पोल्यूटेंट्स विल बी प्रोड्यूस्ड एंड यू नो द रेस्ट. वी शुड ट्राई टू minimize such activities which will increase the air pollution. Okay, so this is all about the air pollution. I hope you all have understood and just be aware of all these things. Try to minimize the pollution. So till that time, you take care of yourself. Goodbye.